সোমবার 18 ডিসেম্বর 33 জন বিরোধী সাংসদকে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন থেকে বহিষ্কার করা হলো। এই তালিকায় রয়েছেন 9 জন তৃণমূল সাংসদ। শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য বহিষ্কার করা হলো। তবে শুধু লোকসভাই নয়, রাজ্যসভাতেও 45 জন বিরোধী সাংসদকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে মোট 78 জন বিরোধী সাংসদকে বহিষ্কার করা হলো। এদিন বিরোধী সাংসদরা পার্লামেন্টে রং বোমা কাণ্ডের জন্য সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিবৃতি দাবি জানান। তারপরই নিয়ম বিরোধী কাজের অভিযোগে সাংসদদের বহিষ্কার করেন স্পিকার। এদিন এই ঘটনায় হইচই শুরু হয় সংসদে। তা এমন জায়গায় পৌঁছায় যে অধিবেশন স্থগিত করতে হয়। আগেই 14 জন বিরোধী সাংসদকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সোমবারের পর বহিষ্কৃত বিরোধী সাংসদদের মোট সংখ্যা দাঁড়ালো 92। কারণ কি? গত 13 ডিসেম্বর পার্লামেন্টে রং বোমা নিয়ে ঢুকে পড়ে প্রতিবাদীরা। অধিবেশন চলাকালীন এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় দেশ জুড়ে। এই ঘটনায় সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিরোধী সাংসদরাও। তারা প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি চান। বিরোধীরা বিবৃতির দাবি জানালে হট্টগোল বেঁধে যায়। অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। তারপর বহিষ্কৃত হওয়ার পর অধীর চৌধুরী তার প্রতিক্রিয়ায় জানান, অনেক সাংসদ সাসপেন্ড হয়েছেন, আমিও সাসপেন্ড হয়েছি। আমাদের দাবি ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বক্তব্য রাখুন, বিরোধী নেতাদের নিয়ে আলোচনার কথাও বলেছিলাম। সংসদ চালানো সরকারের দায়িত্ব, বিরোধীদের নিয়ে সংসদ চালানো উচিত। সংসদ আরএসএস এবং বিজেপির পার্টি অফিস হতে পারে না। ডান্ডা চালিয়ে বিরোধীদের ঠান্ডা করে দেবেন ভেবেছিলেন, তাই এটা করেছেন। বিরোধীদের মধ্যে কেউ আর বাকি নেই বহিষ্কৃত হতে। অধীর চৌধুরীর কি বক্তব্য, তার প্রতিক্রিয়া কি, শুনুন। सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं। सुबह से और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको
आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। तो इसलिए वो ये करके दिखाया। वो गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर है, मैं भी सारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं सारे। এদিকে সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন কোনো বাজে কাজের জন্য তারা বহিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এভাবে সবাইকে সাসপেন্ড করা যায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমনটাই প্রতিক্রিয়া। তাহলে গোটা হাউসই সাসপেন্ড করতে হবে। এবার মানুষের কথা কে বলবেন? মানুষের কণ্ঠরোধ করা হলো। হাউস চালানোর কোনো মরাল গ্রাউন্ড নেই। বিরোধীদের সাসপেন্ড করে কিভাবে হাউস চালাবে? শুনুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া। Any bad cause they can do, but it is not that collectively they have to suspend everybody. Then house to be suspended. What they think that house is supreme? Then if house is supreme, then why they are so afraid? If they have the majority of members, they are passing all the bill by voice vote, and if they suspend all the members, how they can raise their voice? Three important bills they are passing, even the law bill also. It's very important criminal law bill. We all said that date that new government comes, election is left out only for 3 months, 4 months. Why they will take a decision right now? Even new government can review all this. There is a system in democracy. Who will work with them? Who will raise the voice of the people? You tell me. Totally the voice of the people is being totally stopped, choked. Let them suspend the house first. They have no moral ground to run this house. To expel all the, suspend or expel the opposition fully. How they will run the house? They will run the mockery, nothing else. তবে এর পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন বিজেপির জি কিষান রেড্ডি। তিনি উল্টে বিরোধীরই দুষছেন। जब पुराना बिल्डिंग से नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जब गए हैं, जो भी संसदीय पार्टी के बैठक में सभी पार्टी के लीडर्स ने बोले इस नया बिल्डिंग में हम प्ले कार्ड्स डिस्प्ले नहीं करेंगे और इनडिस्प्ले नहीं करेंगे, वेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर प्रोटेस्ट करना है तो अपना अपना स्थानों में खड़ा होकर प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा सभी लोग सहमति हुआ है, सभी लोगों का निर्णय हुआ है। मगर वो सहमति को वायलेट करते हुए आज फिर लगातार इस सेशन में, इससे पहले सेशन में भी जो पुराने आदत, विपक्षों का पुराने आदत है, वही आदत से फिर सेशन को होने नहीं देना, उसको और प्ले कार्ड्स प्ले करना, स्पीकर के ऊपर प्ले कार्ड्स फाड़कर पेपर्स फेंकना। आज तो स्पीकर के चेयर के बाजू तक ऊपर स्टेज के ऊपर जाकर पहली बार नया बिल्डिंग में ऐसा अनडिसेंट व्यवहार आज विपक्ष ने किया है। इसलिए बार बार स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स मीटिंग, पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स मीटिंग्स में भी किया है, बात किया है, और चेयर से भी बार बार आदेश दिया है, बार बार रिक्वेस्ट भी किया है। अगली व्यवहार नहीं करना चाहिए और वेल के अंदर नहीं आना चाहिए, प्ले कार्ड्स अंदर नहीं ले आना चाहिए। मगर बार बार क्योंकि आज जो विपक्ष है इनसिक्योरिटी में है, आने वाले चुनाव में इनसिक्योरिटी के कारण आने वाले चुनाव में फिर इस संसद में आते नहीं आते, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है। मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग, जनता भी कोई सहमत नहीं है। स्पीकर बहुत आक्रोश था, स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए, हम समर्थन किया, इतना ही है।
সংসদের এই শীতকালীন অধিবেশনের বাকি আছে আর মোটে কয়েকটা দিন, তার মধ্যে এতজন সাংসদ বহিষ্কার। আপনাদের মতামত কি জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট সেকশনে, এবং দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল। সাবস্ক্রাইব করে নিন চ্যানেলটি।